dear students, I welcome you all to my YouTube channel Nursing Made. Dear students, today we are going to talk about aneurysm. This is the disease condition of cardiovascular system. Aneurysm is characterized by it is characterized by ballooning of arteries, or we can say bulging of arteries. Let us suppose this is an artery. अगर इस आर्टरी में कहीं पे बल्ज हो जाए और बलून लाइक शेप हो जाए, and this is known as aneurysm. And these aneurysms can occur in small arteries or medium sized or large arteries. And अगर हम बात करेंगे एन्यूरिज्म की, एन्यूरिज्म कहाँ पे हो सकता है? ये स्मॉल आर्टरीज में हो सकता है, मीडियम साइज्ड और लार्ज आर्टरीज में हो सकता है। एन्यूरिज्म कैसे हो सकता है, ये क्यों होता है? अगर यहाँ आप देखो, दिस इज द वॉल ऑफ एन आर्टरी, दिस इज द वॉल ऑफ एन आर्टरी। आर्टरी के पास तीन कवरिंग्स होते हैं, दिस इज इंटिमा एंड दिस इज मीडिया एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एडवेंशिया। अगर इन तीन कवरिंग्स में कहीं पे वीकनिंग हो जाए, ये वीक हो जाए, ये तीन लेयर्स, तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से कहीं पे भी आर्टरी के सेगमेंट में एन्यूरिज्म हो सकता है। बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज है इनसाइड द आर्टरी, तो इसकी वजह से भी प्रेशर इन आर्टरीज के वॉल्स पे पड़ता है, जिसकी वजह से इन टर्म एक पर्सन को एन्यूरिज्म हो सकता है। सो आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा? एन्यूरिज्म क्या होता है? इसमें बलूनिंग ऑफ आर्टरीज होता है एंड इसमें बल्जिंग ऑफ आर्टरीज होता है। कहाँ पे एन्यूरिज्म होता है? बल्जिंग और वी कैन से बलूनिंग ऑफ आर्टरीज, ये इनके वॉल्स पे होता है। जब ये वॉल्स एक्सपैंड हो जाए, क्या हो जाए? एक्सपैंड हो जाए। मगर कहाँ पे एक्सपैंड होते हैं? जहाँ पे ये वॉल वीक हुए होते हैं, तो वहां पे बलूनिंग और बल्जिंग ऑफ आर्टरीज होता है। And this aneurysm can occur in small arteries, or it can occur in medium-sized arteries, or it can occur in large-sized arteries. Now, we have classification of aneurysm. Classification of aneurysm. Classification is based on size and based on cause. We have two types of classification, one that is based on size and another that is based on cause. If we go through this based on size, we have three types of aneurysms. First, that is fusiform. Second, that is circular, and the third, that is dissecting aneurysm. Now we have three types of aneurysms in based on size. The first, that is fusiform, second circular, and the third, that is dissecting aneurysm. If we see this fusiform, अगर आर्टरी है, आर्टरी के दोनों साइड से एन्यूरिज्म का शेप बन जाए, दोनों साइड से एन्यूरिज्म बन जाए और दोनों साइड से बल्जिंग हो जाए और बलूनिंग हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूसिफॉर्म। अगर यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी है, लेट अस सपोज दिस कैरोटिड आर्टरी, इस आर्टरी के दोनों सेगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट, तो इसको हम कहलाते हैं फ्यूसिफॉर्म aneurysm. Now the second, that is circular. Let us suppose this is an artery, carotid artery, and in this carotid artery, अगर एक ही साइड में
बल्जिंग और बलूनिंग ऑफ आर्टरी हो जाए उसको हम बोलते हैं सैकुलर एनोरिज्म. In the same way, we have third type, that is dissecting. In dissecting, let us suppose this is here artery, this is here artery, and these are the three coverings of an artery. This is blood inside the artery, or we can say in the lumen of an artery. अगर इस इंटिमा में कहीं पे टीयर हो जाए और टीयर से यहाँ जो lumen में ब्लड है वो लीक हो जाए into the intima, or it can go into the media as well, and this leads to formation of a structure which is known as intramural hematoma. So the difference lies in both cases, that is fusiform और secular. आपने देखा इसमें fusiform में दोनों साइड से bulge होता है, बट जो ब्लड होता है that is still within in the lumen. Only जो वाल है वो expand होते हैं and bulge like structure बनता है. And in the same way circular में one side में वही balloon like structure बनता है. And the third, that is dissecting. Dissecting में क्या होता है, इस इंटिमा में ब्लड जाता है from the lumen, or it can go into the media as well, and this leads to the formation of intramural hematoma. Hematoma यहाँ पे बन जाएगा, and that hematoma can increase the size of an artery. It can lead to the formation of bulge. It can lead to the formation of, we can say, this balloon, and this is known as dissecting because the blood goes into the wall of an artery, that is intima or media, and that blood which lies within the arterial wall, that is known as intramural hematoma. So far we have discussed the three types of aneurysm which is based on size. Now we have one more classification, that is based on cause. And the based on cause we have two types. First, that is true aneurysm, and the second, that is known as false aneurysm. False is also known as pseudo aneurysm. What is true aneurysm? This is that aneurysm. This is that aneurysm which is caused by hypertension, because हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड इनसाइड द आर्टरी होता है और इसका प्रेशर ज्यादा होता है इनटू द वॉल ऑफ द आर्टरी. इस वॉल ऑफ द आर्टरी पे ज्यादा प्रेशर होगा, एंड इसकी वजह से, इस प्रेशर की वजह से जो आर्टरियल वॉल होते हैं वो वीक होते हैं, एंड इससे क्या होता है, इससे एक एन्यूरिज्म बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रू एन्यूरिज्म. व्हाट इज फॉलोज एन्यूरिज्म? फॉलोज एन्यूरिज्म उसको हम कहते हैं जहां पे एन्यूरिज्म बनेगा बट इट इज बिकॉज ऑफ इंजरी. किसी को एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे उसका जो आर्टरियल वॉल है वो डैमेज हुआ, वीक हुआ, और उसको एन्यूरिज्म. नाउ वी हैव मेन थ्री टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म. हमारे पास तीन एन्यूरिज्म के मेन टाइप्स है, एंड द फर्स्ट टाइप दैट इज aortic aneurysm, and the second type that is cerebral aneurysm, and the third type that is peripheral aneurysm. So these are the main types of aneurysm: aortic aneurysm, cerebral aneurysm and peripheral aneurysm. अगर aortic aneurysm को देखेंगे, इसकी फर्दर दो टाइप्स है. फर्स्ट दैट इज एब्डोमिनल aortic aneurysm. This is abdominal
aortic aneurysm. And the second type, that is thoracic aortic aneurysm. Among all three, aortic aneurysm is the most common to occur, because all these are medium-sized arteries. If the patient is having thoracic aortic aneurysm, that patient may have consistent chest pain. This is the heart, and here is the aorta, and still it is having different branch that goes to the whole body. And one of them, this is here thoracic artery. अगर इस thoracic artery में aneurysm बन जाए तो उसको बोलते हैं thoracic aortic aneurysm, because it is the part of aorta. And if the patient is having this kind of situation, that is thoracic aortic aneurysm, at that time patient may have consistent chest pain. And patient जो होता है ये prefer करता है constant supine posture. तो खाली किस पोजीशन में रहता है? सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ रहता है. एंड द सेम वे वी हैव वन मोर टाइप, दैट इज एब्डोमिनल. सेम आयोटिक की कोई भी पार्ट जो एब्डोमेन से गुजरते हैं, अगर उसमें कहीं पे एनोरिज्म बन जाए उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल एनोरिज्म. इसमें जो मोस्ट कॉमन है दैट इज इंफ्रारेनल आयोटिक एनोरिज्म. बिकॉज अगर यहां से आयोटा के ब्रांच जाते हैं, ये एब्डोमेन के पास चले गए, एंड इन एब्डोमेन यहाँ पे किडनी होती है. ठीक है, किडनी की दो आर्टरीज होते हैं, एक होता है सुपीरियर एंड अनदर दैट इज इंफीरियर. अगर इस इंफीरियर में क्या हुआ, एन्यूरिज्म हुआ, उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेनल आयोटिक एन्यूरिज्म. व्हाट वी कॉल दैट? वी कॉल दैट इंफ्रारेनल aortic aneurysm. So we have discussed aortic aneurysm, and it is having two types: abdominal aortic aneurysm and thoracic aortic aneurysm. Now the second type, that is cerebral. What is cerebral aneurysm? It is that type of aneurysm which is found in the arteries of brain. ये ब्रेन के आर्टरीज में देखने को मिलता है. एंड इट इज स्मॉल साइजेड बिकॉज हमारे ब्रेन में स्मॉल माइन्यूट आर्टरीज होते हैं, उनमें ये एनोरिज्म देखने को मिलता है. लेट अस सपोज दिस इज हियर ब्रेन, एंड दीज आर द स्मॉल आर्टरीज. अगर इन आर्टरीज में इस किस्म का ऐसे कोई शेप देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल दैट सेरिब्रल एन्यूरिज्म. सेरिब्रल एन्यूरिज्म इज आल्सो नोन एज बेरी एन्यूरिज्म. इनको क्यों बेरी एन्यूरिज्म कहा जाता है? बिकॉज दे आर बेरी लाइक, बेरी इज अ फ्रूट, उसी तरह छोटे छोटे बल्जिंग आउटग्रोथ्स होते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, उनको हम बोलते हैं बेरी एन्यूरिज्म. अगर इन बेरी एन्यूरिज्म फाइनली अगर ये रप्चर हो जाए ये एन्यूरिज्म, और वी कैन सी इनमें इजीली लीक होता है ब्लड इनसे लीक इजीली होता है. द ब्लड दैट कम्स फ्रॉम दिस बेरी एन्यूरिज्म्स, उसको हम कहते हैं सेंटिनल ब्लीड. व्हाट इज सेंटिनल ब्लीड? इट इज द ब्लड व्हिच कम्स फ्रॉम द सेरिब्रल एन्यूरिज्म. ये वहां से लीक होके बाहर आता है. ठीक है, देन
अगर द पेशेंट इज हैविंग सेरेब्रल एन्यूरिज्म एंड ये रप्चर हुआ, इसकी वजह से स्ट्रोक हो जाएगा पेशेंट, इसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है पेशेंट को. सो दिस इज द कॉज ऑफ स्ट्रोक. नाउ द लास्ट टाइप, दैट इज पेरिफेरल एन्यूरिज्म. पेरिफेरल एन्यूरिज्म. Apart from brain and heart, अगर इसके बगैर, इन दोनों के बगैर हमारी बॉडी में कहीं पे भी एन्यूरिज्म देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल एन्यूरिज्म. क्या बोलते हैं उसको? पेरिफेरल एन्यूरिज्म. लाइक लेग, आर्म, लेग के पास होता है femoral artery, popliteal artery. In the same way हमारे आर्म के पास होते हैं brachial artery, radial artery. तो इन आर्टरीज में अगर कहीं पे भी क्या हो जाए, एन्यूरिज्म हो जाए, उसको बोलते हैं पेरिफेरल एन्यूरिज्म. If the patient is having peripheral aneurysm, that time patient may explain numbness, severe pain. Numbness and severe pain. उसके टांग में पेन हो सकती है, numbness हो सकते हैं. क्यों? बिकॉज अगर हम ये देखेंगे यहाँ पे, दिस इज द लेग, इस लेग के पास एक आर्टरी आती है. अगर ये आर्टरी यहाँ से बल्ज होके एन्यूरिज्म बन गए, यहाँ से भी एन्यूरिज्म बने, ऑन देयर इसी के अलाइनमेंट यहाँ से नर्व्स भी गुजरते हैं. इन नर्व्स पे प्रेशर पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस एन्यूरिज्म, और ये कंप्रेस होते हैं एंड दैट लीड्स टू व्हाट? सीवियर पेन. इसकी वजह से सीवियर पेन हो सकता है एंड इसकी वजह से नमनेस हो सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म.